نہلاتے. پہلا کام کیسے نہلاتے ہیں. پھر دوسرا مرحلہ ہوگا کیسے غسل دیتے ہیں, اس کے بعد کفن پہناتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا مرحلہ کفن دینے کا. پہلے تو میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں کسی کی وفات ہو جائے اور وفات ہو جانے کے بعد جب آپ کے گھر میں میت ہو یا جنازہ گاہ جہاں غسل دیا جاتا ہے, جیسے یہاں پر مقصلہ معتلق بنا ہوا ہے مسجدوں میں جوامع میں, اور وہاں جانے کے بعد جو ہے باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ باڈی جو ہوتی ہے مرنے والے کی ہسپتال سے آتی ہے اور بعض دفعہ باڈی ایکسیڈنٹل ہے کہ نہیں ہے. بعض دفعہ عام موت ہو گئی, کسی کی روح نکل گئی. تو اگر ہاسپٹل سے باڈی آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل سے جو باڈی آتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں وہ لوگ لگا کے رکھتے ہیں. جیسے کہیں پٹی لگا کے رکھا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پیر کو باندھ کے رکھا ہے, کہیں اس آدمی کی وفات کے بعد لگا دیتے ہیں باقاعدہ ہاتھ میں, جیسے حج میں جاتے ہیں ہم لگاتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, اسٹیکر ہے, ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے, ایڈریس کیا ہے, پورا لگا دیتے ہیں. وہ بعض دفعہ ہاسپٹل سے ایسی باڈی آ گئی جو بہت زیادہ کمزور اور ضعیف یا اسی طرح سے لاغر تھا اور اس کے جو ہے پیشاب اور پاخانہ نہیں رک رہا ہے, تو پیمپر پہنا دیتے ہیں. تو پیمپر پہنا دیتے ہیں تو اس طرح سے اسی شکل میں وہ لپیٹ کے کپڑوں میں, اور اوپر بعض دفعہ دیکھیں اسٹیکر لگا رہتا ہے, لگا کر کے اور میت کو بھیج دیتے ہیں. اب جب آپ کے پاس آیا غسل دینے کے لیے تو ایسی صورتحال میں اس وقت جتنی بھی چیزیں اس کی باڈی پہ ہیں سب نکال دی جائیں گی. کوئی بھی ٹیگ, کوئی بھی علامت, کوئی بھی کپڑا, کوئی بھی چیز نہیں رہے گا. نیچے اوپر جتنا بھی ہے, چاہے وہ اوپر لگا ہو, نیچے لگا ہو, یا اسی طرح سے کیا نام ہے پیشاب پاخانے کی جگہ پہ لگا ہو, سب نکال دیا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کو وفات ہو گئی, وہ تو ہاسپٹل سے آیا تو باڈی میں کچھ نہیں ہوتا سوائے وہ ہاسپٹل والے لپیٹ کے بھیجتے ہیں. تو آدمی کپڑا پہنے ہوتا ہے, جس لباس میں تھا لیٹا ہوا تھا مر گیا اسی میں, تو قینچی سے پورا لباس اوپر شرمگاہ کے اوپر کپڑا ڈال کر کے اتنا بڑا, اور قینچی سے پورا لباس کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نکال دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جتنی بھی چیزیں اوپر نیچے اس کے جسم پر ہوتی ہے سب نکال کر کے اور پھر آگے کارروائی ہوتی, نہلایا جاتا ہے. کبھی بار ایکسیڈنٹل ہوتا ہے تو آدمی کا کہیں پیٹ پھٹ گیا ہے, کہیں پیر ٹوٹ گیا ہے, کہیں کچھ مسئلہ ہے, تو ایسی صورتحال میں بھی آپ بڑی آرام سے شفقت کے ساتھ سکون کے ساتھ جو ہے اس کو, اس کے اعضاء کو دھلیں گے. اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں لائق ہونی چاہیے. کوئی زور سے نہ کریں اور اسی طرح سے ایسا نہ کریں کہ مزید ٹوٹ جائے. چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میت کو نہلانے کے وقت آپ کو شفقت اور رحمت کے ساتھ نہلانا ہے. کچھ لوگ اور زور زور سے رگڑتے ہیں, زور زور سے بھی رگڑنا نہیں, آرام و سکون کے ساتھ آپ کو نہلانا ہے. تو میت کو اس صورت میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ کو ساری چیزیں نکال کر کے اب آپ کو کیا کرنا ہے, نہلانے کی باری ہے. تو پہلا کام کیا ہوگا, استجمار اور استنجا جس کو آپ کہتے ہیں وہ کرانا ہے. استجمار اور استنجا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں دستانہ پہن لیں گے, ٹھیک ہے, اور دستانہ پہننے کے بعد اس کے اگر پیٹ صاف ستھرا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر آپ کے پانی ڈال کر کے آپ آگے اور پیچھے سے اس کے شرمگاہ کو دھل دیں گے. ٹھیک ہے, اور جیسے آپ نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہلکا اٹھا کر کے پیڑ دبا دیا جائے گا, ہے تو نہیں, ضرورت نہیں اس کی. ٹھیک ہے, تو استجمار استنجا یعنی پیشاب و پاخانے کے راستے کو دھل دیا جائے گا, جو گلوز پہن کر کے, جو کپڑے کی شکل میں ہو سکتا ہے یا گلوز جو مارکیٹوں میں آتا ہے اس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ کو
اس کے بعد آپ کو وضو کرانا ہے. جیسے آپ وضو کرتے ہیں ویسے آپ کو میت کو آپ تھیلی دھلا دیں, منہ میں پانی ڈال کر کے, اگر کپڑا ہے روئی ہے تو اسے رگڑ دیں, ٹھیک ہے, چہرہ دھل دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مکمل چہرہ دھونے کے بعد پھر دائنا ہاتھ, پھر بایاں ہاتھ, پھر دائنا پیر, پھر بایاں پیر, جیسے وضو کرتے ہیں آپ ویسے وضو کرا دیا جائے گا, ٹھیک ہے. مکمل وضو ہونے کے بعد اب پانی کی 3 شکلیں ہوں گی. پانی کی کتنی شکلیں ہوں گی؟ 3 شکلیں ہوں گی. ایک پانی ہوگا جو کافور والا ہوگا, اور ایک پانی جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بیری کے پتا ہمارے یہاں مان لیجیے ہے, یہاں سدر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سدر ہے, اور ایک عام پانی ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پہلے وضو بنانے کے بعد آپ بیری کے پانی سے یا سدر کے پانی سے آپ نہلائیں گے. کہاں سے؟ پہلے دائیں طرف پانی ڈالیں گے, پھر اٹھا کر کے پھر نیچے سے پانی ڈالیں گے, پھر دوسری طرف یہ پہلے وہ جو پانی میں ڈلا ہوا ہے پورا اسی سے نہلائیں گے. پھر دوسری طرف اگر کپڑا وغیرہ ہے تو اسی کپڑے وغیرہ سے رگڑ کے ہلکا ہلکا پورا ہاتھ پیر رگڑ وغیرہ کے صاف کر دیں گے. پھر دوسری طرف بائیں طرف ڈالیں گے, اور بائیں طرف ڈالنے کے بعد پھر تھوڑا اٹھا کر کے پھر نیچے کے حصے میں ڈالیں گے, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے داہنے پہ کیا تو ویسے آپ کو بائیں پہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ مکمل کر لیا. اب عام پانی جو ہے صاف پانی آپ ڈال کر کے, کیونکہ سدر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یا بیریک پانی ڈال رہے تو پھر اس سے آپ مکمل صاف کر دیں گے. سیم ویسے ہی پہلے داہنے پھر بائیں, ٹھیک ہے, اور مکمل یہ دوسرا پانی ہو جائے گا. تیسرے میں کافور والا پانی استعمال کریں گے. جس بالٹی میں آپ کافور رکھے ہوئے ہیں اس میں کافور ڈال کر کے آپ چلا دیے ہیں, اور اس کے بعد اس کافور کے پانی کو بھی سیم ایسے ہی پہلے دائیں سائڈ, پھر اٹھا کر کے اس کے نیچے کے حصے میں, پھر بائیں سائڈ, پھر اٹھا کر کے اس کے نیچے کے حصے میں جو ہے پانی آپ ڈالیں گے, اور اس کے بعد پھر مکمل یہ 3 مرتبہ غسل ہو گیا. اب اسی دوران آپ کو تھوڑا ہاتھ پیر لگانا ہے گلوز پہن کر کے, تاکہ کسی طرح کی کوئی چیز ہو تو صاف ستھری ہو جائے. اگر کہیں خون نکل گیا تو روئی لگا دیں. کہیں پیشاب پاخانہ نہیں رک رہا ہے تو اچھے سے ڈھنگ کے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار جتنی بار دھلیں, دھل کر کے اور اس کے بعد پھر روئی کا فوہا لگا دیں تاکہ گندگی باہر نہ آئے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ مریض ہوتا ہے آدمی اور اس طرح سے سلسلہ آ جاتا ہے تو باقاعدہ روئی لگا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مکمل ہو گیا. کافور کا پانی ڈال دیا. اب وہ جو آپ نے شرمگاہ کے اوپر کالا کپڑا یا ڈالا تھا آپ نے, اس کو ہٹا کے سفید کپڑا رکھ دیں تاکہ صاف ستھرا ہو. اس کے بعد روئی سے آپ کافور چونکہ جلدی گلتا نہیں, اس کو باقاعدہ آپ جو ہے باریک کر لیں گے, اور اس کے بعد اگر چہرے پہ کہیں لگا تو روئی سے تھوڑا ہلکا پھلکا صاف کر لیں گے, کیونکہ خوشبو دار ہوتا ہے اور خوشبو آتا ہے اس میں. تو آپ کیا کریں گے, باقاعدہ اس کو پھر روئی سے ہلکا پھلکا صاف کر کے اور پھر باہر لا کر کے, یا جہاں بھی کفن پہنا رہا آپ کو پہلے سے کفن بچھا کے رکھیں گے, ٹھیک ہے, کفن بچھا کے رکھیں گے اور پھر اس پر لا کر کے لیٹا دیں گے. اب لیٹانے کے بعد اس کے جسم پر خوشبو لگائیں گے. خوشبو جو آپ کے پاس شیشی کی شکل میں ہو سکتی ہے, یا وہ کیا بولتے ہیں اس کو, پرفیوم ہے, آپ اس کو مار دیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مسک ہے, مسک اس کے اوپر آپ جگہ جگہ پورے جسم پر مل دیں, ٹھیک ہے, خوشبو اور مسک کے ساتھ. اس کے بعد پھر مکمل آپ نے مل دیا, اور اس کے بعد پھر آپ کپڑے کو الٹیں گے اور تینوں کپڑے کو ایک دوسرے پر پلٹ کر کے باندھ دیں گے, اور پھر لاسٹ میں یہاں بھی خوشبو لگا دیں گے آپ, یہاں تاکہ کسی طرح کی کوئی بدبو یا دیکھنے والے کا چہرہ صاف ستھرا رکھے. آپ کنگھی بھی کر سکتے ہیں اگر بال بڑے ہیں, داڑھی واڑی نہلانے ولانے میں جیسے جو ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے, تو کنگھی بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے کنگھی بال میں موچ کر کے اور پھر آپ اس کو قاعدے سے باندھ دیں گے. کم سے کم 4 5 6 جگہ باندھ ہے, کوئی تعداد متعین نہیں ہے. اس طرح سے باندھ ہے کہ میت کو اٹھانے میں پریشانی نہ ہو. بعض دفعہ قبر میں اتارتے اسی کو پکڑ کر کے اتارتے ہیں, ہے نا, کہ مرنے کے بعد آدمی وزن ہو جاتا ہے, وزنی ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد قبر میں اتارنے میں اسی طرح سے کوئی مسئلہ اٹھانے میں رکھنے میں کھلنے نہ پائے.
कपड़ा इस तरह से आप मुकम्मल फिर उसके चेहरे को खोल दें थोड़ा बहुत, ताकि लोग देखना चाहे तो देखें, फिर उसके बाद बांध दें। तो ये शक्ल हो जाएगी मय्यत को नहलाने के बाद कफनाई। ठीक है, अब हम करके दिखाते हैं, जैसे आप आए। नहीं, कुछ नहीं करो, जैसे आप जिंदगी में पर्दा है वैसे मरने के बाद भी पर्दा है। ठीक है, बगल के बाद, ज़ेरनाब के बाद, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, मोच के बारे में आता है कि अगर किसी के मोच बड़े हैं और उसमें ऐसा भी है कि वो आदमी अस्पताल में बहुत दिनों से था, नहीं मौका मिला, नहीं बना पा रहा था, मरीज था, तो यह है कि अगर काट दिया जाए तो मुस्तहब अमल है, और ना अगर वैसे भी कोई हर्ज नहीं। नाखून वगैरह भी अगर बड़े हैं और नहीं मौका मिल रहा है, मरीज आदमी है, मुस्तशफा में मौजूद था, टाइम ही नहीं मिला उसको, उसी में उसकी वफात हो गई, अगर नाखून बड़े हैं तो नाखून उसका काट दे, लेकिन अगर ना भी काटे तो हर्ज की बात नहीं, जो मुस्तहब अमल है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है करेंगे। हाँ जरूर, मिसाल के तौर पर जरूर ये इससे ले लेंगे। पहले साफ होगा भाई, जमाल साफ देखो, ये देखें, ये है सिद्र। ठीक है, सिद्र पैरिक पत्ते जो होते हैं ना, सिकम पाउडर है, इसको जैसे ये बाल्टी है ना, ये इसी बाल्टी में डाल ले और खूब कायदे से बाल्टी भर करके पूरा जो है आप घुमा दें कायदे से। ठीक है, और उसके बाद ये काफूर है, काफूर को कायदे से बारीक कर दें, इसको बारीक करके फिर दूसरी बाल्टी में इसको डालें और उसको चला दें। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चीज तैयार हो गया, एक बाल्टी में सिदर हो गया, पैरिक पत्ता जिसको आप कहते हैं, और दूसरे में काफूर हो गया। दो बाल्टी आपकी रेडी है, तैयार है। उसके बाद ये इसमें है कम्मामा है और दस्ताना है। मान लीजिए एक आदमी गुस्ल दे रहा है, तो ये दस्ताना रेडीमेड है, मान लीजिए रेडीमेड। अगर किसी के पास रेडीमेड नहीं तो कपड़े को बना ले। ठीक है, और इसको वो क्या करे, पहन ले हाथ में, दोनों हाथों में, और ये सेफ्टी के तौर पर ये दिया है कि कम्मामा लगा ले वो। ठीक है, ताकि किसी तरह की कोई उसको वो ना आए, महसूस ना हो। तो इस तरह से वो क्या करेगा, ये सारी चीजें इस्तेमाल कर लेगा। ये ऐसे बस लगा लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये मिस्क है, क्या है ये? मिस्क है, जो लास्ट में नहलाने के बाद उसके जिस्म पर डाला जाता है। ये सारे आइटम हैं जो आपके लिए हैं। अब मिसाल के तौर पर इसको ऊपर रखें, जैसे मैं रोड में आओ, मिसाल के तौर पर लेट जाओ, मिसाल के तौर पर ये लेट गए, वो रंगीन कपड़ा उठाओ, उसको तैयारी में बड़ा ना करो, शरीर को छोड़ो, बड़ा ना करो, बड़ा ना करो, बस। मान लीजिए ये है, अब इसको जैसे ये बहुत बड़ा हो गया, छोटा करोगे आप इधर आओ साइड में, देखो ये डाल लिया ना आगे इस पे। ठीक है, इतना डाल दिया काफी है। ठीक है, ये डाल दिया आपने, रंगीन कपड़ा इसमें डाले ताकि नहीं डले तो दिखाई ना दे, सफेद कपड़े में नजर आता कि नहीं। हाँ सही है। तो ये आपने डाल दिया। अब उसके बाद इनका कपड़ा काट के अंदर से बाहर से सब काट करके निकाल देंगे। ठीक है, और ये ऐसे ही कपड़ा ये रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये निकालने के बाद कपड़ा अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले पानी से जो आपने दस्ताना पहन रखा है, दस्ताना कहाँ शरीफ है,
पहने उसको आप हाथ में। मान लीजिए दस्ताना नहलाने वाले ने पहन लिया, ठीक है, दस्ताना पहन लिया तो है। दस्ताना पहनने के बाद हाथ ऐसे डाल करके आगे पीछे, आगे इस्तिंजा की जगह और पीछे इस्तिजमार की जगह, यानी बाथरूम और दोनों जो है हाथ डाल करके आदमी साफ कर देगा दस्ताना पहन करके, ठीक है। अब उसके बाद वजू बनाना है। वजू बनाने के लिए मान लीजिए पहले क्या करेंगे, ये थोड़ी धुलेंगे दोनों, ठीक है, ये दोनों हथेली धुलेंगे। उसके बाद उसमें एक छोटा कपड़ा होगा ना, मान लीजिए इसे आप या कोई भी कपड़ा है या रुई है ले करके आप मुंह पे ऐसे रगड़ देंगे, नाक पर रगड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद पानी का पूरा डाल करके और उसके चेहरे को धुल देंगे, ठीक है, मुकम्मल चेहरे को धुलेंगे। मुकम्मल चेहरा धुलने के बाद फिर ये दाहिना हाथ यहां से लेकर के और यहां तक पूरा धुलेंगे, फिर बायां हाथ यहां से लेकर के यहां तक धुलेंगे, फिर मसा करा देंगे जैसे मसा होता है, ठीक, नमाज के लिए वजू बनाते हैं मसा कर देंगे। उसके बाद फिर दाहिना पैर यहां से तक पूरा धुल देंगे और फिर बायां पैर यहां से यहां तक मुकम्मल धुल देंगे। वजू हो गया। ये वजू जब हो गया मुकम्मल तो वजू होने के बाद अब उसके बाद आपको नहलाना है। अगर ये सफाई मुकम्मल हो गई है तो खलास। अब बात दफा होता है कि वजू बनाने के बाद सफाई नहीं जा रही तो तब भी आपको बार बार धुलना ताकि साफ हो जाए और रुई लगा दें आप। ये दाहिनी साइड है और वो बाईं साइड है, ठीक है। ये दाहिना है, ये दाहिना है, ये बायां है, ठीक है। ये आप पानी यहां से जैसे मग है वो मिसाल के तौर पर इसमें मान लीजिए ये मग आपके पास है, इसमें पानी लेकर के आप ऐसे दाहिनी तरफ डालेंगे। कौन सा पानी डालेंगे? जो सिद्र वाला है, सिद्र वाला, ठीक है, बैरी का पत्ता जो, ठीक है, जो बैरी का पत्ता वाला पानी है सिद्र वाला वो आप डालेंगे। आप उठा करके इसको कायदे से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद डाल देंगे, कायदे से रगड़ देंगे हाथ वाथ से पूरा। उसके बाद आप लेते रहो कायदे से ऐसे, फिर ऐसे हल्का सा उठाएंगे, ऐसे मुड़ेंगे हल्का सा, हाँ, फिर इसके बाद यहां से पूरा ऐसे डालेंगे, ठीक है। ये मुकम्मल। तो पहले ऐसे डाले, फिर पीठ में भी पूरा आ गया पानी, रगड़ दिया कायदे से आपने। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही बाएं पे डालेंगे जैसे दाहिने पे डाले थे। उसके बाद फिर थोड़ा ऐसे करके और फिर ऐसे मुकम्मल पीछे के हिस्से में पूरा डाल देंगे, ठीक है। अब ये मुकम्मल हो गया, दोनों तरफ बैरी का पानी आपका डल गया। अब उसके बाद आप पानी अच्छा जब डालेंगे तो उसमें चेहरे वगैरह पूरा सब धुल देंगे कायदे से मुकम्मल। ये नहीं किया पहले वजू बनाने छोड़ देंगे, मुकम्मल चेहरा धुलेंगे कायदे से, रगड़ देंगे हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा तेज नहीं रगड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पानी लेकर के बाल्टी में, जहां आपके पास या पाइप है पानी का जो भी है, उसको फिर वैसे ही धुलेंगे जैसे पैरी का पानी आपने डाल के धुला था। पहले दाहिने पे डालेंगे, फिर उठा करके फिर नीचे डाल देंगे, फिर बाएं पे आएंगे, फिर डालेंगे, फिर नीचे से, फिर कायदे से मुकम्मल चारों तरफ से पानी डाल करके और साफ कर देंगे। जो बैरी का पत्ता था पानी वाला जिसमें डला था, जाहिर बात जगह जगह लगा हुआ, जब उसको आप भोरेंगे ना तो ऐसे मुकम्मल जो है उसकी खुशबू आती है। अब वैसे में खोला ही वैसे खुशबू आ रही है। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद काफूर वाला पानी जो आपने रेडी कर रखा है, तो काफूर वाला पानी भी सेम ऐसे ही डालना है। पहले दाहिने पे, फिर उठा करके नीचे के हिस्से में, फिर बाएं पे और फिर उठा करके नीचे के हिस्से में, सर से लेके पैर तक मुकम्मल डालना है आपको ये, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 बार आपने गोया के पानी से मय्यत को गुस्ल दिया। एक पहली के पानी से, एक आम पानी हो गया और एक काफूर का पानी हो गया। अगर किसी मय्यत को मजीद जरूरत पड़े, मान लीजिए कि नहीं साफ हुआ या कोई 3 के बजाय 5 बार देना चाहे, 7 बार देना चाहे, और जरूरत है मय्यत को बार बार देने की, जैसे सफाई नहीं हो पा रही है या कोई और मसला दरपेश है, तो 3 से बार ज्यादा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो 3 बार से भी ज्यादा गुस्ल दिया जा सकता है। अब जब आपने नहला लिया तो वो सफेद वाला कपड़ा उठाओ, कोई भी सफेद कपड़ा खोलो। आप क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, इसको हटाने में चूंकि भीग चुका है नहलाने में, ठीक है, नहलाते भूल गए, हम इसको हटा करके और उसके बाद हम दूसरा नया कपड़ा यहां रख देंगे और हटा देंगे इसको, ठीक है। अब ये पूरा साफ हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, हमने इसको बिछा करके फिर हम उस जगह ले जाएंगे जहां कफन हमारा है, ठीक है। अब कफन कैसे देना है आप बता दें, मान लीजिए इसको अब हम उठो दो, वो कपड़ा निकालो, ये है नीचे, हाँ निकालो, ये 3 चादर है, ठीक है। यही सेम औरत को भी दिया जा सकता है, यही सेम औरत मर्द को भी, लेकिन हमारे जैसे औरत को 5 कपड़े भी दिए जा सकते हैं या दे सकते हैं, 3 पे भी चल काफी। एक ये हो गया, इसको खोलो तभी तो आएगा, हाँ। ये बड़ा है थोड़ा, कोई बात नहीं है। ये इसी के ऊपर दूसरा भी बिछाओ, इसी के ऊपर तीसरा भी बिछाओ, तीन हो गया ना, तीनों आपने बिछा रखा है चारपाई पे, तख्त पे, जहां जो आपको मैसर है, ये तीनों आपने बिछा दिया। अब जो चारपाई पे जिस जगह आपने मीट को नहलाया है वैसे ही उठा करके पकड़ करके जो भी शक्ल बने आप इस पे लेटा देंगे लाकर, जैसे लेटो, ये देखिए बराबर पूरा लेट गया ना। अगर बार दफा क्या होता है कि सर जैसे इधर उधर कोई मुश्किल है सर में, ठीक है, तो सर के नीचे कुछ रख देंगे, एक शक्ल ये है। दूसरी शक्ल ये है कि पैर अगर इधर उधर हो तो पैर थोड़ा मिला देंगे जैसे जैसे, ठीक है। और हमने देखा कि अगर मैयत बार दफा बहुत बुजुर्ग होता है, कोई मसला दरपेश होता है, तो मैयत के नीचे जो है रुई वगैरह रख दिया जाता है, रुई रख करके खुशबू मार करके, ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। ये हाथ आकर रखे, अब उसमें तो खुशबू है, खुशबू है ना, ये खुशबू जो है 1 2 3 जितना आपके पास मैसर हो, ठीक है, बाकायदा आप इसको पूरे जिस्म पर मार देंगे, जैसे जिसके पास जितनी मैसर हो, 1 2 3 4 5 जितना आप डाल सके, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, मुनासिब मुतवस्सित हो, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा बहुत रगड़ दें हल्का सा ताकि खुशबू आए, और उसके बाद वो मिस्क है, छोटी सी पुड़िया, खुशबू के बाद खुशबू है और मिस्क है, ये नहीं है, ये नहीं, व्हाइट कलर नहीं, व्हाइट एक पन्नी है, नहीं वो नहीं, वो है, ये मिस्क है, इसको मैंने पहले बताया था आपको। ये मिस्क को आप फिर उसके जिस्म पर जगह 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 मार देंगे, ठीक है, मुकम्मल खुशबू लग गया, मिस्क लग गया, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि कहीं जैसे जख्म लगा हुआ है, खून रिस रहा है, तो वहां रुई लगा दें, ठीक है, या कहीं नाक पे या कान पे या कहीं कुछ मसला है तो वहां लगा दें, ठीक है। सर इधर उधर भाग रहा है तो आप कुछ रुई लगा कर रख दें, ठीक है। इस तरह से आप मुकम्मल ये जब कर लेंगे, जो सफेद कपड़ा आप रखे हुए थे इसको उठा लेंगे, उसको हटा करके फिर आप क्या करेंगे, पहले दाहिना पलटेंगे कि बायां, क्यों, नमाज में आप कैसे हाथ बांधते हैं, दाहिना कि बायां, नीचे बायां होता है, जैसे आप नमाज में हाथ बांधते हैं ऐसे ही लपेटना है, ये है ना, पहले बाएं की तरफ से,
तो गोया कि नहीं इनका हाथ ऐसे ही रहेगा, यही पे। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो ऐसे रख देंगे, ऐसे हाथ, ठीक है, ऐसे रख के फिर ये बाया है ना, ये पहला उठा करके और ऐसे लपेटेंगे, थोड़ा टाइट लपेटेंगे, फिर उधर से उठा करके दाहिना लपेटेंगे ऐसे, ठीक है, फिर बाया उठाएंगे इधर से, ये लपेट देंगे, फिर इधर से ये लपेट देंगे, फिर उसके बाद तीसरा उठा के लपेटेंगे इस तरह से, ये मुकम्मल हो गया, ठीक है, ये मुकम्मल हो गया। अब ये पट्टी है, देखें ये पट्टी है, ये हस्बे जरूरत 4, 5, 6, 7, 3 जो भी है, जगह जगह जैसे आप हाथ पे उतारेंगे ताकि हाथ इधर उधर न भागे, एक आप यहाँ बांध देंगे, एक यहाँ बांध देंगे, एक सीने पे बांध देंगे, एक पैर पे बांध देंगे, ठीक है, मुकम्मल, और एक लास्ट में पैर के पास आप वहां सर के पास बांधने के लिए रखे रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे आप लोग कहते हैं ना कि लोग देखने आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे खोल देंगे, ठीक है, ये खोल दिया है, मिसाल के तौर पर खोल गया ये, ठीक है। अब देखने वाले देख रहे हैं, उसके बाद फिर तरतीब से उसको तय करके फिर लास्ट में बांध दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से मुकम्मल, ये जब आप इसको बांधेंगे तो थोड़ा मजबूत बांधेंगे ताकि टूटने न पाए, और इस तरह से जब आप कब्र में उतारेंगे तो उसके सहारे पकड़ करके उतार सकें, क्योंकि और कोई चीज तो पकड़ने की होती नहीं है, बात दफा वजनी होता है, तो आप कायदा से पकड़ करके आदमी उतार भी सकता है, ठीक है। वैसे नीचे से भी हाथ लगा सकता है, चादर इसलिए लगाते हैं कि उतारने में आसानी हो, लेकिन अगर आपका बंधन मजबूत है तो नहीं चाहिए, 6-7 आपने बांध दिया है नहीं, तो फिर वैसे भी उतार सकते हैं। इस तरह से ये मुकम्मल आपका गुस्ल और मुकम्मल आपका एक खत्म हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? अगर समझ में नहीं तो दोहरा दूंगा, मैं फिर से दोहरा दूंगा, समझ में आनी चाहिए, इसलिए कि आपके साथ भी कोई ना कोई मामला हो सकता है। आदमी दुनिया में रहता है, किसी के साथ हो सकता है, किसी के घर पे हो सकता है, किसी ऐसे मुकाम पर है जहाँ कोई नहलाने वाला नहीं, जहाँ कोई कफनाने वाला नहीं, उसको पता नहीं कैसे नहलाया जाए, कैसे धुलाया जाए, इसलिए ये प्रैक्टिकल बताया गया ताकि कभी भी आपके साथ मामला पेश है। इसलिए कहा गया कि अगर आपका कोई करीबी मर गया, हमारे आपके वालिद की वफात होगी, तो कम से कम आप जो है खुद गुस्ल दे सकें, आप खुद कफन दे सकें, है कि नहीं, करीब आप हैं उसके। यहाँ मैंने देखा है कि जब किसी की वफात होती है तो उसका बेटा आ जाता है, उसका बाप भाई आ जाता है, उसका चचा आता है, और अंदर जाते हैं इजाजत लेकर के, और गुस्ल देने में बाकायदा काम करते हैं और साथ साथ लगे रहते हैं। आज भी मैं गया था, सुबह भाग के गया था मैं 8 बजे, मालूम है, पूरा 2 मय्यत को गुस्ल दे के आया हूं, ऐसे पूरा मुझे प्रैक्टिकल बताया गया, मैं पूरा करके आया हूं। तो इस तरह से ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर मय्यत औरत है तो औरत है तब भी ऐसे ही गुस्ल दिया जाएगा जैसे दिया गया है, ठीक है, और ऐसे ही 3 कपड़े में उस मय्यत को भी, औरत मय्यत को भी कफना सकते हैं। अगर 5 है तब भी कोई मुश्किल नहीं, 5 भी दे सकते, उसमें कमीज और एक दुपट्टा का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, 5 कपड़े हो जाएंगे उसे, 3 ये और चादर और एक बड़े से कमीज और एक दुपट्टा। लेकिन अगर सिर्फ 3 में कोई कपड़ा दे तब भी हो सकता है, कोई अच्छी बात नहीं, पर्दा हो जाएगा मुकम्मल। और रही बात औरत की चोटी का मामला, औरत के बाल होते हैं तो उसके बाल को 3 हिस्से में करके बट दिया जाएगा और उसके पीठ पर डाल दिया जाएगा। बाद लोग कहते उसके सर पे यानी सीने पे, पेट पे नहीं, कहां डाला जाएगा? पीठ पे डाल दिया जाएगा। तो इसी तरह से औरत का भी मामला होगा, नहलाने का और कफनाने का, और ऐसे ही मर्द का जो मैंने आपको बताया है। बात समझ में आ गई ना? इंशाल्लाह इसको हटा दे भाई, इसको कब तक बिताए रखेंगे। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे मुझे को, आप लोगों को समझाने के लिए इतना वक्त दिया इन्होंने, और इस तरह से जो है ये मामला दरपेश है। ये लेकिन मैं गया था सुबह, तो मुझे कपड़ा भी दिया उसने, कहा लेके जाओ, ये इसी से बताना।
میں نے پہلے بتایا کہ کپڑا سفید ہونا چاہیے، درس میں بتا چکا ہوں، کشادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے، متوسط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں آپ میت کو کفنا رہے ہیں، اور اس کے بعد میت کو وہی کپڑا دیں جو عام زندگی میں جیسے وہ اپنے جس معیار کا پہنتا تھا اسی معیار کا اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ مکمل آپ کا کفن اور جو ہے غسل، یہ دونوں بات مکمل ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اب اس میت کو جب آپ نے مکمل کر دیا تو مکمل کرنے کے بعد اب جنازہ کی نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے؟ نہیں پڑھ لیے تو جنازہ کی نماز اگر پڑھنی ہے آپ بول لیجیے، ہم جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، 3 آدمی کو کھڑا کرتے ہیں، چلو 3 آدمی نظر تو امام ہو، مان لو نظر امام ہے، امام ہے، ایسے لوگ پڑے گا، آپ ان کے پیچھے 3 آدمی کھڑے ہو جاؤ، چلو تین آدمی ہے آپ کے پیچھے، مثال کے طور پر جنازہ پڑھنے کے لیے 300 بھی ہو سکتے ہیں، 3 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 3,000 بھی ہو سکتے ہیں، اور 3 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، 3 آدمی ہیں۔ اب جنازہ پڑھنے سے پہلے کیا کچھ ان کو کہنا ہے؟ کیا کہیں؟ وہ کسی کے پاس کوئی پونا ہے تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جو اعلان کرتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ قرضہ وغیرہ ہے، لینا دینا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ جنازہ کے ٹائم اعلان کیا جائے، ویسے بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی وہ عرصہ اپنے میت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، وہاں تو لوگ اس لیے کہتے ہیں اور وہ بھی رسمی طور پہ کہتے ہیں، صحیح نہیں دیتا ہوتا کون ہے اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جنازہ تیار ہے، اور جنازہ مثال کے طور پر آپ یہ ٹیبل سامنے رکھو، تھوڑا سا آگے، ہاں یہ جنازہ مان لیجیے ہے، یہ جنازہ مرد کا جنازہ ہے، تو کہاں کھڑے ہونا ہے ضرور؟ ہاں رکھ دو، مان لیجیے جنازہ ہے تو کہاں کھڑے ہونا ہے؟ وہ تھوڑا کیمرہ گھماؤ بھائی، ریاض تو سست آدمی میں یار، تم کو پتا لگے گا، کیمرے میں دکھنا چاہیے نا کیا نشانہ ہے، ارے کچھ نہیں دکھے گا، چلو مردہ بنا دے پورا، موبائل میں بھی پورا آنا چاہیے، خیریت نہیں تمہاری، یہ مردہ ہے، مرد میت ہے، ٹھیک ہے، تو کہاں کھڑا ہوگا؟ سر کے پاس کی بیچ میں، سر کے پاس، اور اگر یہی جنازہ عورت ہے تو کہاں کھڑا ہوا ہے نا؟ بیچ میں کھڑا ہوگا۔ تو اگر یہ مرد ہے مثال کے طور پر اور مرد کی میت ہے تو کہاں کھڑا ہونا ہے؟ سر کے پاس۔ اب ان کے پیچھے 3 لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ سائڈ ہے، جی، وہ پوچھ رہا ہے عورت کا کدھر کھڑا ہونا ہے؟ بیچ میں، ابھی تو بتایا میں، مرد ہے تو سر کے پاس اور مرد عورت ہے تو بیچ میں۔ یہ مرد میت مان لیجیے، جنازہ یہ مرد کا ہے، اب یہ میت کے جنازے کے سر کے پاس کھڑے ہیں، اب ان کو جنازہ پڑھانا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نیت کیسے کرنی ہے۔ جنازے کی نیت آپ کے دل میں کافی ہے، الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اسی لیے آئے ہو، یہ جنازہ تیار ہے، سامنے کھڑے ہو، جنازہ پڑھنے آئے ہو، یہی نیت ہے، یہ قصد اور ارادہ ہی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ الگ سے نیت کرنے کی نیت کرتا ہوں اس مردے کی اور پیچھے اس پیشمان کے اور اس طرح سے مرد میت ہے کہ عورت میت ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، صرف کیا کہنا ہے کہ کھڑا ہے اور کھڑے ہو گئے، خلاص۔ اب پہلی تکبیر کہنا ہے، امام جیسے مان لیجئے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بھیڑ ہے یا بہت اجنبی لوگ ہیں، جیسے آپ مسجدوں میں آپ گئے تو اعلان کرتا ہے امام کہ یہ جنازہ مرد کا ہے، اعلان کرتا ہے یہ جنازہ عورت کا ہے، یہ جنازہ بچے کا ہے، یا 2 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں، یا کئی ایک جنازہ ہے تو کہہ دیتا ہے کہ مان لیجیے نماز جنازہ 4 مرد 3 عورت 2 بچے، اسے اعلان کر دیتے ہیں،
ठीक है, ताकि लोग जाने क्या कई जनाजे हैं। तो पहली तकबीर ये कहेंगे अल्लाह अकबर, कैसे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। पहली तकबीर कहा अल्लाह अकबर। अब क्या पढ़ना है? सूरह फातिहा डायरेक्ट पढ़ना है। इसमें दुआए सना नहीं पढ़नी, पहले बता चुका हूं मैं। जनाजे में दुआए सना नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। उसके बाद कुल हुवल्लाह पढ़ो। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। यानी पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और कोई एक छोटी सूरत पढ़ ले, ठीक है? ये पहली तकबीर मुकम्मल है। दूसरी तकबीर, اللهم صل على दूसरी तकबीर कहो तो الله أكبर। हाँ, अल्लाह ऊपर दूसरी तकबीर कह दिया। अब फिर اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ये तीसरी तकबीर, اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييت منا فاحيه على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرم اجره ولا تضل بعده. अगर इतनी दुआ पढ़ ले कोई तभी काफी है, लेकिन इसके बाद भी दुआएं हैं। चलो, इसके बाद भी दुआएं हैं। अब तकबीर कहेगा चौथी, अल्लाहु अकबर। ये चौथी तकबीर हुई, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक सलाम भी फेर सकते हैं और दो सलाम भी फेर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब ये पहला सलाम दूसरा सलाम दोनों कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, अब आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तब भी कोई बात नहीं करेंगे तब भी कोई नहीं कह सकता कि क्यों आपने नहीं किया। ये जनाजे की नमाज मुकम्मल होगी, ठीक है? हो गया? हाँ, जनाजा पढ़ ले मुकम्मल ना। हाँ, इधर बैठो। तो गोया कि नमाजे जनाजा ऐसे ही आपको अदा करना है। मय्यत मर्द है, सर के पास खड़ा होना है इमाम को, और पीछे उसके मुक्तदी होंगे। औरत है, बीच में खड़ा होना है, उसके पीछे लोग होंगे, ठीक है? इमाम अल्लाह अकबर कहेगा पहली तकबीर, उसमें दुआए सना नहीं पढ़ेगा, सीधे अल्हम्दु पढ़ेगा, क्योंकि जनाजे में दुआए सना है ही नहीं है। और हमारे बहुत सारे भाइयों के यहाँ है कि दुआए सना है, सूरह फातिहा नहीं है, लेकिन हदीस के सरासर खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी हदीस भी आप पढ़ेंगे कहीं भी दुआए सना नहीं मिलेगा आपको, सब में सूरह फातिहा डायरेक्ट है। तो सूरह फातिहा आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कोई छोटी सूरत पढ़ेगा। अगर इमाम सूरह फातिहा के बाद छोटी सूरत पढ़ रहा है और पीछे मुक्तदियों को मौका मिला तो मुक्तदी भी पढ़ लेंगे, अगर मुक्तदियों को नहीं मौका मिला तो कोई बात नहीं है, ठीक है? सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अल्लाह अकबर कह करके फिर दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिम दरूद शरीफ, ठीक है? मुकम्मल। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, पीछे वाले भी अल्लाह अकबर कहेंगे। फिर अल्लाह अकबर तीसरी तकबीर के बाद कह करके फिर क्या पढ़ेंगे? दुआ पढ़ेंगे। अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, पूरी दुआ है। कई एक दुआएं साबित है, जितना दुआ याद है जिसको जितनी वो पढ़ सकता है। इस तरह से फिर चौथी तकबीर कहेगा वो दुआ पढ़ने के बाद, और उसके बाद चौथी तकबीर के बाद इमाम सलाम फेर देगा। सलाम दोनों तरफ भी फेर सकता है और एक तरफ भी फेर सकता है, दोनों हदीस से साबित है, दोनों जायज है। जहां जैसे एक तरफ फेरते हैं कोई बात नहीं, एक तरफ फेर सकते, हमारे यहाँ दोनों तरफ फेरते हैं। जो अगर इमाम एक तरफ फेर रहा है तो आपको एक ही तरफ फेरना है। हमारे यहाँ क्या हमारे लोग करते हैं, इमाम तो एक तरफ फेर रहा, हम दोनों तरफ फेरे बैठे हैं। तो इमाम
की इत्तिबा करनी है आपको, इमाम के पीछे आना है, ठीक है। हाँ सही है। इसलिए एक ही तरफ आप अगर इमाम फेर रहे हो तो एक ही तरफ फेरेंगे आप, और अगर इमाम दोनों तरफ फेर रहे हैं तो फिर आप दोनों तरफ फेरें। इस तरह से नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई। अब मय्यत को उठा करके कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान पर मय्यत को ले जाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर पाय, चार पाई के पाय को पकड़े, एक पकड़ लिया दो पकड़ लिया, नहीं भी पकड़ा तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसे हमारे लोगों ने बता दिया कि अगर एक पकड़ लिया तो चारों पकड़ना घूम घूम के, मैंने इससे पहले बताया कि कोई जरूरी नहीं है, नहीं पकड़ा कोई बात नहीं। इमाम मय्यत के पीछे पीछे आप चले और कब्रिस्तान तक ले जाए उसको, और उसके बाद ले जाकर के उसको दफनाए, यानी वहां पर जहां उसकी कब्र खोदी गई वहां ले जाए, और उसके बाद वहां पर वही सिलसिला होगा जो मय्यत को दफनाने के लिए किया गया है। तो ये इस तरह से आपको आज समझ में बात आ गई होगी कि कैसे नहलाएंगे, धुलाएंगे और कैसे दफनाएंगे और कैसे नमाज जनाजा पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह बात काफी है, मुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा खासतौर से और दीगर नमाज को भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। कौन सा कब्र में कैसे उतारना है? कब्र में उतारने वाला पहले बताया था मैं। मान लीजिए कब्र है, ये मय्यत है, ये कब्र है, मान लीजिए कब्र है, तो मय्यत के पैर की जानिब से कब्र में उतारेंगे आप। ये मय्यत है, ठीक है, तो मय्यत है और ये कब्र है, ठीक है। मान लीजिए ये कब्र है, इस तरह से ये शक्ल है, ठीक है, और ये मय्यत है, तो नहीं इधर आओ, पीछे आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ, ऐसे ये देखो, ये कब्र है कि क्या पैर है और ये सर है, तो कब्र में पैर की जानिब से उतारना है, क्योंकि ये पैर ही मय्यत के इधर रहेगा। अब ऐसे ही जैसे उधर जाओ, ऐसे लेके जाना है, मान लिया कपड़ा लगा लिया, ऐसे उतार देना है नीचे, ठीक है। हाँ, सर पहले जाएगा तभी तो होगा पैर। मय्यत के पैर की जानिब से उतारने में मतलब एक ही जिधर पैर रहेगा उस साइड से उतारना है। समझ बात है कि नहीं? ऐसे भी उतार सकते हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे उठा करके ऐसे नीचे उतार देते हैं, लेकिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर साहबे किराम को उतारा गया ऐसे ही उतारा गया। लेकिन अगर कोई ऐसे भी उतार देगा तो उतार सकता है, ठीक है। हाँ, ये सुन्नत यही है कि मैं ये दो उसके कब्र में पैर की जानिब उतारा गया, ठीक है। पहले सर आएगा तो भी तो पैर की जानिब होगा, क्योंकि कब्र में तो ऐसे ही है ना वो, ठीक है। इस तरह से उतारेगा और इस तरह से उतार करके फिर उसको लहर वाली कब्र तो लहर में डाल देंगे, वैसे रखना तो बीच में रख देंगे, और उसके बाद फिर लहर वाली तो ईंटा कच्ची ईंटे की जुड़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये शक्ल होगी उतारने की। अब याद हो गया ना इंशाल्लाह? कभी उतारे कभी नहीं किसी मय्यत को उतारा ना है, उतारा उतारे हो, माशाअल्लाह। उतारना, नहलाना, धुलाना ये अजर सवाब का काम है। बाज लोगों को हमने देखा इससे बड़े पेश रहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, फट से कब्र में उतर जाता है। आप भी सोच रहे कपड़ा में गंदा हो जाए कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मतलब मैंने देखा हो, ये सऊदियों को भी देखा मैंने, बाज हमारा एक मुदीर था, मैं दरवाजे में था, मतलब मुदीर बड़ा आदमी था और मुदीर मतलब था, लेकिन मैंने उसको कब्रिस्तान में देखा इतना तेजी से कब्र में उतरता था, खटाक से उतर करके वो मय्यत को लेकर के डाल देता। वो कपड़ा बड़ा कुछ नहीं कि गंदा, हमारे यहाँ कपड़े संभालने में जाएंगे तो ऐसी सूरत हाल में एक तरह का अज्र है, सवाब है, और जब भी मौका मिले तो इस अज्र सवाब को गंवाना नहीं चाहिए, आप ये काम जरूर करें, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी बातें फिर होती रहेगी। आज मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है और इंशाल्लाह समझ बात आ गई होगी। अगर किसी को समझ में ना आई होगी तो दोबारा मुझसे कभी वीडियो पूछ सकता है, और वीडियो भी मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी डाउनलोड, इससे पहले वाला मैं कर चुका हूँ, फिर कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिनिश नहीं किया तुमने आप कैसे